नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं और हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेसन 19, लव योर बॉडी, थर्ड एसेट्स फ्रॉम सोनिया चॉकलेट, सो लेसन एंड सोल पर्पज चैनल मटेरियल। You cannot aspire to higher levels of consciousness until you are peaceful in your present physical awareness. Your body, your best teacher, because it precisely reflects how you are viewing yourself. This does not mean that you are to strive to become an ideal specimen of beauty or health, especially according to other people's standards. Instead, realize that you are already perfect in God's eye and love your divine temple completely. Never say an unkind word about your physical form. Do not call it fat, slow, ugly, and wrinkled, too tall, too short, too bald, or too thin. Love it as it is and appreciate how tenderly it serves you. Know your body, for each one has its own requirements for balance and health. What are yours? Care for it and listen to what it needs for balance. Also notice what you put in this amazing instrument of life. It is good for you or does it harm you? To know the answer is a reflection of love. Tell yourself, I love you every time you see your reflection. Never say that you hate yourself or use the word hate in referring to your body, for it is a divine cloak of light. It can be reshaped, resilient, hardy, forgiving, and absolutely honest. It will adapt to the image you hold, not immediately but soon enough to naturally mold your physical self into a vessel that pleases you without the use of plastic surgery, liposuction, or other extreme makeovers. Give it adoration and appreciation. Strictly maintain the vision you seek in your mind and heart, and choose behavior that support your desired outcome. Cherish your scared vehicle and it will love you back. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सो लेसन 19, लव योर बॉडी, थर्ड assets from Sonia Chocolate, Soul Lesson, and Soul Purpose channel material. You cannot aspire to higher level of consciousness until you are peaceful in your present physical awareness. Your body is your best teacher because it precisely reflects how you are viewing yourself. This does not mean that you are to strive to become an ideal specimen of beauty or health, especially according to your other people's standards. Instead, realize that you are already perfect in God's eye and love your divine temple completely. Never say an unkind word about your physical form. Do not call it fat, slow, ugly, old, wrinkled, too tall, too short, too bald, or too thin. Love it as it is and appreciate how tenderly it serves you. Know your body, for each one has its own requirements for balance and health. What are yours? Care for it and listen to what it needs for balance. Also notice what you put in this amazing instrument of life. Is it good for you or does it harm you? To know the answer is a reflection of love. Tell yourself, I love you every time you are reflection. Never say that you hate yourself or use the word hate in referring to your body, for it is a divine cloak of light. It can be reshaped into any form you wish. It is responsive, resilient, hardy, forgiving, and absolutely honest. It will adapt to the image you hold, not immediately but soon enough to naturally mold your physical self into a vessel that pleases you without the use of plastic surgery, liposuction, or other extreme makeovers. Give it adoration and appreciation. Strictly maintain the vision you seek in your mind and heart, and choose behavior that support your desired outcome. Cherish your scared vehicle and it will love you back. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। आत्मा पाठ 19वां अध्याय, अपने शरीर से प्यार करें, तृतीय सोनिया चेकवट, आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश, चैनल सामग्री। जब तक आप अपनी वर्तमान भौतिक जागरूकता में शांतिपूर्ण नहीं होते, तब तक आप चेतना के उच्च स्तर की आकांक्षा नहीं कर सकते। आपका शरीर आपका सबसे अच्छा शिक्षक है, क्योंकि यह सटीक रूप से दर्शाता है कि आप खुद को कैसा
देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको विशेष रूप से अन्य लोगों के मानकों के अनुसार सौंदर्य या स्वास्थ्य का एक आदर्श नमूना बनने का प्रयास करना है। इसके बजाय यह महसूस करें कि आप पहले से ही भगवान की नजर में परिपूर्ण हैं और अपने दिव्य मंदिर से पूरी तरह प्यार करते हैं। अपने शारीरिक स्वरूप के बारे में कभी भी कोई अप्रिय शब्द ना कहें। इसे मोटा, धीमा, बदसूरत, बूढ़ा, झुर्रीदार, बहुत लंबा, बहुत छोटा, बहुत गंजा या बहुत पतला मत कहो। इसे वैसे ही प्यार करें जैसा यह है और इसकी सराहना करें कि यह कितनी कोमलता से आपकी सेवा करता है। अपने शरीर को जाने, क्योंकि संतुलन और स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। तुम्हारे क्या है, इसकी देखभाल करें और सुने कि संतुलन के लिए इसे अद्भुत साधन में क्या रखा है। क्या यह आपके लिए क्या अच्छा है या आपको नुकसान पहुंचाता है? उत्तर जानना प्रेम का प्रतिबिंब है। जब भी आप अपना प्रतिबिंब देखें तो अपने आप से कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह भी ना कहें कि आप खुद से नफरत करते हैं या अपने शरीर के संदर्भ में नफरत शब्द का उपयोग करें, क्योंकि यह प्रकाश का एक दिव्य आवरण है। इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में बदला जा सकता है। यह प्रतिक्रियाशील है, लचीला है, साहसी, क्षमाशील और बिल्कुल ईमानदार। यह आपकी छवि के अनुरूप ढल जाएगा, तुरंत नहीं लेकिन जल्द ही। प्लास्टिक सर्जरी के उपयोग के बिना स्वाभाविक रूप से अपने शरीर स्व को ऐसे बर्तन में डालना जो आपको प्रसन्न करे। लिपोसक्शन या अन्य चरम बदलाव इसे प्रशंसा और प्रशंसा दें। अपने मन और हृदय में जिस दृष्टि को आप चाहते हैं उसे लगातार बनाए रखें और ऐसा व्यवहार चुने जो आपको वांछित परिणामों का समर्थन करता है। अपने पवित्र वाहन को संजोएं और यह भी आपसे प्यार करेगा। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। आत्मा पाठ और 19वां अध्याय, अपने शरीर से प्यार करें। यहाँ पर अपने शरीर के बारे में बता रहे हैं। पिछले कई अध्यायों के माध्यम से हम सुनते और समझते आए हैं। फिर पत्र में सोनिया चैकवेट की पुस्तक आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लेकर बता रहे हैं। जब तक आप अपनी वर्तमान भौतिक जागरूकता में शांतिपूर्ण नहीं होते, यानी कि हम हमारे अंदर जो भौतिक शरीर के अंदर जो जागरूकता शांतिपूर्ण नहीं है, शांति नहीं है, तब तक चेतना के उच्च स्तर की आकांक्षा हम नहीं कर सकते। आपका शरीर आपका सबसे अच्छा शिक्षक है। हमारा शरीर जो है हमारा सबसे प्रिय शिक्षक है, सबसे अच्छा शिक्षक है, क्योंकि यह सटीक रूप से दर्शाता है कि वो खुद को कैसा आप देख रहे हैं, हम शरीर को कैसे देख रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप इस रूप से हम लोगों के अनुसार अपने शरीर को सुंदर और स्वास्थ्य का एक आदर्श नमूना बनाने का प्रयास करें। इसके बजाय ये महसूस करें कि आप पहले से ही भगवान की नजर में, परमात्मा की नजर में हम परिपूर्ण हैं। अपने दिव्य मंदिर से पूरी तरह प्यार करते हैं। अपने दिव्य मंदिर यानी हम शरीर को अपना पूरी तरह से प्यार करते हैं। अपने शारीरिक स्वरूप के बारे में कभी भी कोई अप्रिय शब्द ना कहें। उन्हें अपने शरीर के बारे उसके किसी तरह का अप्रिय शब्द का उपयोग ना करें। इससे कभी हम मोटा, धीमा, बदसूरत, बूढ़ा, झुर्रीदार, लंबा, छोटा या गंजा या किसी प्रकार का प्रिय शब्द का प्रयोग ना करें। इसे जैसा है वैसा ही प्यार करें। यह देखें कि आपकी यह कितनी कोमलता से आपकी सेवा करता है। अपने शरीर को जाने, क्योंकि संतुलन और स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। तुम्हारे क्या है, इसके लिए अद्भुत साधन में क्या रखा है। क्या यह आपके लिए अच्छा है या आपको नुकसान पहुंचाता है? उत्तर जानना यह प्रेम का प्रतिबिंब है। जब भी आप अपना प्रतिबिंब देखें तो अपने आप से कहें, मैंने हम जब शीशे के सामने जब खड़े होते हैं अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हम उससे कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने शरीर से प्यार करता हूँ, उसके बारे में बता रहे हैं। और खुद से कभी नफरत के बारे यह ना कहें कि अपने शरीर से नफरत करता हूँ। नफरत शब्द का कभी उपयोग ना करें। यह प्रकाश का एक दिव्य आवरण है। इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में बदला जा सकता है। यह प्रतिक्रियाशील है, लचीला है, साहसी है, क्षमाशील और बिल्कुल ईमानदार। यह आपकी छवि के अनुरूप ढल जाएगा। जैसा हम इस शरीर को चाहेंगे वैसा हम ढाल सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के उपयोग के बिना स्वाभाविक रूप से अपने शरीर स्व को ऐसे बर्तन में डालना जो आपको प्रसन्न करे और प्रशंसा दे। अपने मन और हृदय में जिस दृष्टि से आप चाहते हैं उसे बनाए रखें।
जो जैसा हम चाहते हैं अपने अंदर वैसी दृष्टि लगातार बनाए रखें और ऐसा व्यवहार चुनें जो आपको वांछित परिणामों का समर्थन करता है। अपने पवित्र वाहन को संजोए। यहाँ पवित्र वाहन का मतलब शरीर है, उसको अच्छी तरह संजोए, उसका ध्यान रखें और यह भी आपसे प्यार करेगा। जितना हम इससे प्यार करेंगे ये हमारे को भी प्यार करेगा। हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, जैसा हम चाहेंगे। इसके बारे पत्री सर ने इस अध्याय के में हमें बताया कि अपने शरीर को प्यार करें और शरीर के किसी बारे में टिप्पणी ना करें कि पतला है, मोटा है या गंजा है। जैसा शरीर है उसका प्यार करें और देखें, इसका ख्याल रखें। दोस्तों, इस अध्याय के माध्यम से अगर इन चीजों को हमें समझना है गहराई से तो हमें ध्यान करना होगा। स्वाध्याय और संजय संगति के माध्यम से आप जल्दी इस चीज को समझ पाएंगे और हम अपने शरीर से प्यार करेंगे। ध्यान के पूर्व में अपने कुछ इस चीज के नहीं पता होता कि हमें अपने शरीर का कैसे ध्यान रखना होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे प्रतिदिन तो हम अपने शरीर से प्यार करने लगेंगे। मैं आपको स्व अनुभव से बता रहा हूँ। तो ध्यान से पूर्व मैं भी अपने शरीर का उतना प्यार नहीं करता था, लेकिन ध्यान करने के बाद अपने शरीर से पूरा उसकी देखभाल करना, उसका बारे अच्छे शब्द का प्रयोग करना, हर तरफ से प्रसन्नचित रहना, इस चीज को मैंने समझ पाया। तो आप भी इसको अपना जीवन के अंदर इसको देखें और इसको अमल करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।